ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਨਾ, ਬੋਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਇਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਹੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
गुरबाणी दे राहीं गुरमत दे राहीं जो हासिल होता है और फिर वो साडे प्रैक्टिकल लाइफ दे विच भी आ जावे ते उस नूं असीं सही जानकारी जिहड़ी है वो ज्ञान दी सानूं प्राप्ति होएगी। जे असीं उहनूं अपने जे कोई सानूं ज्ञान पता है ते असीं उस नूं इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, सानूं ਉਹਦੀ इंप्लीमेंटेशन करन दी टेक्नीक नहीं पता है ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। तो इसे करके ही भाई गुरदास जी ने गुरु नानक पातशाह के कंटेक्स्ट में लिखा है कि जोगी ज्ञान भी होने निज दिन अंग लगायन छारा बाज गुरु डुबा जग सारा। क्योंकि वो एक ऐसा उन्होंने को ज्ञान प्राप्त हो गया सी, उन्होंने तपस्या करके या होर तरीकों के नाल वो ज्ञान नूं प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान नूं अगों संसार के भले वास्ते जो है उन्होंने नहीं वरत्या। वो एक ऐसी गुरु वाली स्थिति विच आ गए सन कि वो अगर संसार की बाह पकड़ दे ते कई जिहड़ियां अलामतां संसार दे विच लगियां सन, जिहड़े माया दे प्रभाव सन, उन्हां तों संसार नूं मुक्ति दिवा सकते सन। लेकिन ऐसा कोई भी उपराला जोगियां ने नहीं कीता ते उन्हां दा जो ज्ञान उन्हां नूं प्राप्त सीगा वो व्यर्थ हो गया। और जिन्हां नूं होर ज्ञान प्राप्त सी, काजी वो बड़े ज्ञानवान सन, काजी कूड़ बोल मल खाए, भाई गुरदास जी ने लिखा है गुरु नानक पातशाह समय अंदर। ब्राह्मण बड़े विद्वान सन, ज्ञानवान सन, ब्राह्मण नहाए जियां खाए, वो जियां दे उपर जुल्म करके समझ लो उन्होंने मारदे ही सन, उन्होंने खून ही निचोड़ते सन। जोगी ज्ञान भी होने निज दिन अंग लगाए नछारा, तो वो अपने सिर च सुआह पा के अपने शरीर के उत्ते जो है वो लगा करके अपने सुआह मल के विभूति मल के अपने आप नूं संसार तो आइसोलेट करके बैठे सन। जोगी आइसोलेट करके बैठे सन ते जिहड़े ब्राह्मण और मलाने सन वो उस ज्ञान की दुर्वरतों करके उन्हां प्रजा के उपर जिहड़ा है वो जुल्म करने शुरू कर देते, प्रजा नूं उन्हां दा खून निचोड़ना शुरू कर देता, अपने पिछे उन्होंने लाया। तो असीं देखिए कि ये जो ज्ञान है इनू गल्लां नाल जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई आखे कि मैं गल्लां करी जावां ते मैं उस ज्ञान नूं प्राप्त कर लवां, तां इस तरह ये प्राप्त हो नहीं सकता। ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है, कथना करड़ा सार, करम मिले तां पाइए और हिकमत हुक्म खुआर। कि होर जिन्नियां भी चलाकियां हन वो सब खुआर हन। अगर असी सच्चा जो ज्ञान है वो सानू अगर नहीं प्राप्त होता, वो गुरु की बख्शिश के नाल सानू ज्ञान प्राप्त होएगा। तो भाव ये इत्थों निकलता है कि भावें असी दुनियावी तौर के उपर जिन्ना भी ज्ञान प्राप्त कर लीए, इवन गुरबाणी दे विचों भी सिख इतिहास दे विचों भी किसी तरीके नाल साखियां तो भी भावें जिन्ना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लीए, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान नहीं होएगा जब तक असी गुरु दे बख्शिश दे पात्र नहीं बनते ते गुरु दे अगे आत्म समर्पण नहीं करते। भाव जिन्ना मर्जी को पढ़िया होवे, लेकिन इसके बावजूद भी उस गुरु दे अगे आत्म समर्पण करना है ते तां ही जिहड़ा तत ज्ञान है जो गुरु की बख्शिश दे विच जिहड़ा है समाया होया है वो तां सानू प्राप्त होएगा। कबीर साहब ने इत्थे सानू ये गल समझाई कि देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। इस शब्द के अर्थ मेरे वीर जी ने पिछले कुछ हफ्तियां विच कीते सन। ये सानू दस्सिया सीगा कि ये राग गौड़ी चेती दे विच कबीर साहब का 331 अंक के उपर यह शब्द जिहड़ा है सुभाईमान है। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, जो गुरु बख्शिश कर दिंदा है, जिवें असीं हुणे गल कर रहे सीगे कि जो गुरु बख्शिश कर दिंदा है तां हे सज्जन वेख जदों ज्ञान की हनेरी आउंदी है तां उस दे विच की तब्दीली आ जाती है। तब्दीली ये आई कि सबै उडानी भ्रम की टाटी रहे न माया बांधी। भाव उस साडे मन दे विच जिन्ने भी जिहड़े भरम दे जिहड़े असीं अपने अंदर एक छत अपनी बनाई हुई सीगी
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਦਾ ਛੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੱਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 364 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰ ਜੋ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਔਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, तो जिते तू मेहर करेगा उसनू ये यथार्थ ज्ञान दी जड़ी बख्शिश होएगी। फिर वही इस ज्ञान नू अपने मन विच, अपने बचना राही और अपने कर्मा राही उसनू वरत के अपना भी कल्याण करेगा ते लोगों का भी कल्याण जिहड़ा है वो कर सकता है। गुर प्रसादी सेव कराए, तो उस पासों गुरु की कृपा नाल अपनी सेवा भक्ति करांदा है, जिसदे उपर गुरु आप कृपा करता है। ज्ञान रतन सब सोझी होए। हे भाई, गुरु दे बख्शे होए ज्ञान रतन दी बरकत नाल मनुख नू सही जीवन जुगत बारे हरेक किस्म दी समझ आ जाती है। फिर हुंदा कि गुरु दी कृपा नाल, गुरु दे ज्ञान नाल की हुंदा? गुर प्रसाद अज्ञान विनाशा है। आसा महला तीजा अंक 364 दे उपर सतगुर फरमा रहे हैं गुरु अमरदास पातशाह, गुर प्रसाद अगन विनाशा है, आंदिन जागै वेखै सच सोए रहो। गुरु की कृपा नाल जिस मनुख का अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञानवान वही मनुख है जिसके अंदर अज्ञान नहीं है, जिसके अंदर भरम नहीं है, जिसके अंदर भय नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, वही जड़ा है असली ज्ञानवान है। वैसे भावे जिमें ब्रह्मदास ने भी जड़े ऊठां दे ऊठ भरे हुए सन पुस्तकां दे नाल, जिन्हों आसा की वार दे अंदर भी दस्या, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़िए जेते बरस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल और होमे चखना चाह। वो किताबी ज्ञान पढ़ पढ़ के उसने अपना एक लाइब्रेरी बना ली और अपने एक मतलब कि उन्हें अपने हंकार नू तूल देने वास्ते अपने ऊठां दे उपर भी धर्म पुस्तक लद के अपने नाल चलता सी कि मेरे ना कोई बहस करे। तो इस तरह ही ज्ञानी दित्त जी सिंह जी ने भी स्वामी दयानंद दे हंकार नू तोड़िया सी, क्योंकि वो अपने आप नू बड़ा मारतंड समझदा सी, बड़े अपने आप नू विद्वान समझदा सीगा। लेकिन 3 बहसां दे अंदर पिछली 2 सदियां च उन्होंने उसका हंकार 3 बहसां विच तोड़िया। मैं संगतां नू बेनती करांगा कि वह बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक जिहड़ियां हम 3 बहसां हन, उन्होंने सिख मिशनरी कॉलेज वालों साधु दयानंद ते मेरा संवाद वो किताब छपी हुई है। मैं बेनती करांगा कि सारे वीर मिशनरी कॉलेज तो उसनू लै करके उसनू पढ़न, उहदे नाल भी काफ़ी जिहड़ा है जिहड़ा ज्ञान है वो प्राप्त होता है। तो सतगुर दी जिसनू मेहर हो जाती है उसनू ये चीज़ जिहड़ी है वो प्राप्त होती है। तो इस नाल हुंदा की है
कि गुर प्रसाद अज्ञान विनाशा है। फिर जिस वेले अज्ञान दूर हो जाता है तो वो हर वेले माया के हल्लियां वालों सुचेत रहता है कि उत्ते हुण कि किसी वेले भी माया मैनू आके ढा ना लवे, मैनू किसी वेले भी काम आके दबा ना लवे, किसी वेले भी क्रोध आके मैनू दबा ना लवे, किसी वेले लोभ मोह अहंकार जिहड़े हन, ये पंज दुष्ट जिहड़े हन वो मैनू जिहड़े है दबान ना। ने ते पंज जवान गुर थापी दिती कंड जियो। तो गुरु की थापी दे नाल, गुरु की मेहर दे नाल इन्हां नू कंट्रोल कर लिया गया। नेते का मतलब कंट्रोल कर लिया कि जिस वेले मैनू सतगुरु ने इन्नी पावर दी, ज्ञान तत्त ज्ञान दी मैनू ताकत दी, तो मैं उस दे नाल इन्हां नू कंट्रोल कर सकिया। तो हमेशा ही सुचेत रहता है, हर थां उस सदा कायम रहन वाले परमात्मा नू ही देखता है कि सब जगह सब थां दे उपर वो परमात्मा ही है कि जेता कीता तेता नाउ विन नावे नाही को थाओ। कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे परमात्मा की वडियाई नहीं है और परमात्मा आप जिहड़ा है विराजमान नहीं है। तो इस करके उसके मन के अंदर एक चढ़ती कला का जिहड़ा है वो संकल्प रहिंदा है, मन के अंदर चढ़ती कला का उहदे अंदर तेज प्रताप रहिंदा है कि मैनू हुण की कर सकते हैं। फिर वो बड़ी उचियां बाहां करके कहता है, नस वंजो किल विखो करता कर आया, दूते दहन पिया गोबिंद प्रगटाया। हुण मेरे अंदर गोबिंद का तेज प्रताप आ गया है, मेरे अंदर प्रगट हो गया है, तो हुण तुसीं दुष्टों नस जाओ, नहीं तो तुहाडी खैर नहीं। तो आंदिर जागै वेखे सच सोए। वो फिर हर थां उस सदा कायम रहन वाले परमात्मा नू ही वेखदा है। मोह गुमान गुर शब्द चलाए। जो गुरु के शब्द का जिहड़ा ज्ञान प्राप्त होया, उस राही उसने की किया, है भाई जिहड़ा मनुख गुरु के शब्द की बरकत नाल अपने अंदरों मोह अते अहंकार साड़ देता है, फिर उसनूं प्राप्त की हुंदा है। जे उसने अपने अंदरों मोह भी खत्म कर दिता, गुमान भी कर दिता, फिर उसकी अवस्था बनती है पूरे गुर ते सोझी पाए। फिर वो पूरे गुरु तो हर जीवन जुगत की सही समझ ले लेंदा है कि मेरा मनुखा जन्म जिहड़ा है इसनूं मैं किवें साकारत करना है। फिर वो हर वेले वो प्रभु दे सुरत जोड़ी रखता है। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए, बहदियां उठदियां हर नाम ध्याइए, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै, जिसनू दयाल होए मेरा स्वामी सतगुरु, तिस गुरसिख गुर उपदेश सुनावै, या नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। जिस वेले गुरु की सोझी उसनू प्राप्त हो जाती है, तत् ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी नाम जिहड़ा है वो जपान की सिचुएशन विच आ जाता है। हुण जिथे ज्ञान की गल कर रहे हैं, ज्ञान की इंपॉर्टेंस कितनी है इसनूं असीं समझिए कि ज्ञान नूं समझण की कोशिश कर रहे हैं, तो सानूं ये भी पता लगना चाहिए है कि ज्ञान की जिहड़ी है वो कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है। तो आसा की वार के अंदर सतगुरु जी ने, गुरु नानक पातशाह जी ने सानूं समझाया है कि कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। जिवें पानी अते आदਿਕ भांडे विच ही बझा होया पाप पिया होया एक थां टिकिया रह सकता है पानी, जिवें पानी तो बिना घड़ा नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंस है उस जल की। घड़े का एग्जाम्पल दे कर कह रहे हैं, ज्ञान का बद्दा मन रहे, जिवें वो पानी जिहड़ा है घड़े दे विच जिहड़ा है बझा होया है, और पानी के इस्तेमाल तो बिना घड़ा नहीं बन सकता है। तो इंज ही ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। तिवें गुरु दे ज्ञान भाव उपदेश का बझा होया ही मन एक थां टिकिया रह सकता है, भाव विकारां वाल नहीं दौड़ता, अते गुरु तो बिना ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। तो जे असीं होर किते भी टकरा मार लईए, किसी भी होर विधियां दे नाल जल धारा कर लईए, असीं पुठे अपने आप नूं टंग लईए, असीं धूणियां ता लईए, किन्ने भी यज्ञ कर लईए, लेकिन जो सानू गुरु का ज्ञान है वो केवल गुरु तो ही प्राप्त हो सकता है। होर किसी तरीके नाल भी ये ज्ञान जिहड़ा है वो पैदा ही नहीं हो सकता साडे मन के अंदर। साडे विकारां नूं जो है वो भांज पानी है तो केवल गुरु दे ज्ञान नहीं पानी है, होर कोई तरीका नहीं है।
फिर सतगुर फरमाते हैं टोडी महला चौथा 711 अंक दे उत्ते ओए मनमुख मूढ़ अज्ञानी कहिए कि अपने मन दे पिछे तुरन वाले वो जड़े गुरु दे लड़ नहीं लगते। जो उन्होंने कहो किसी ने भी अमृत छक लो, तो अमृत छकन नालों अपने आप को ज्यादा जड़े है वो सियाणे समझते हैं। जे उन्होंने कहो कि कोई गुरबाणी दे व्याकरण समझ लो, कोई गुरबाणी का टीका पढ़ लो, गुरबाणी का रट्टाफिकेशन नाल कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो फिर अपने आप को सुचेत समझते हैं। वो जिहड़े सुचेत ऐसे मनुख ने ना, उन्होंने बारे भी गुरबाणी सानू यही समझाती है कि वो मनमुख वो मनमुख हैं, अपने मन के पिछे लगते हैं, वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं, वो अज्ञानी हैं। उन्होंने अज्ञानी कहा जाएगा। तीन मस्तक भाग मंदेरा, भाव उन्होंने मस्तक दे विच, उन्होंने मथे विच जो उन्होंने कर्म किए हैं उस दे समझ अनुसार उन्होंने उगड़ी हुई समझ जिहड़ी है वो नहीं जाती, उन्होंने जिहड़ी है वो दूर हो जाती है। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। वो मनुखा नू गुरु पासों चंगे मंदे जड़े हैं काम की प्रेरणा जिहड़ी है वो नहीं मिलती। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, जो ये विवेक बुद्ध की है, विवेक बुद्ध है कि चंगे माड़े की पछाण, मनमत ते गुरमत की पछाण होनी, इसनूं विवेक बुद्ध कहते हैं। और ये विवेक बुद्ध कित्थों प्राप्त होंदी है? वो बाजारों मिलती नहीं, ना किसी डेरे तो मिलनी है, ते ना किसी होर तरीके ना मिलनी है। ये विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, सतगुर तो ही प्राप्त हो सकती है। गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, वो मनुखा ने गुरु पासों चंगे मंदे काम की परख करन वाली अकल हासिल कर लई। उन्होंने परमात्मा के मिलाप वास्ते गुरु पासों आत्मक जीवन की सूझ प्राप्त कर ली। हुण ज्ञान भी यही है, अगर ज्ञान को समझना है तो आत्मक जीवन की सूझ है। जिस को ज्ञान गुरु का ज्ञान है उसनों पता है कि मैं इन्हां कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां का किवें असी इस्तेमाल करना है। उन्होंने पता है कि नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त वो अपनी लहे। कोई जागत रहे का भाव मतलब वो है कि वही जागेगा इस ग्रह दे विच जिहदे अंदर विषय विकार काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। जिसनों गुरु की मत प्राप्त हो गई है उसने इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं खत्म कर दिता है। ये जो यथार्थ ज्ञान की जिहड़ी है विवेक बुद्धि जिहड़ी प्राप्ति है गुरु तो हुई, तो उस दे नाल आत्मक जीवन की सोझी सानू प्राप्त हो गई। जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लिखेरा। हे दास नानक, जिन्हां दे मत्थे उत्ते तुरों लिखिया चंगा भाग उगड़ पिया, उन्होंने गुरु पासों परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया। भाव जिवें असी गुरमत विच सानू गुरबाणी दे विच अनेक थावां ते उपर दस्सिया जांदा है कि सतगुरु दी प्राप्ति वास्ते असी गुरु अगे अरदास करनी है। जिन्होंने गुरु कृपा करके सतगुरु दे नाल मिला दिंदा है, फिर सतगुरु उन्होंने मुड़ के गुरु दे नाल मिला दिंदा है और गुरु दे दस्से तरीके नाल असी अकाल पुरख नूं प्राप्त हो सकते हैं। तो जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लिखेरा। हे दास नानक, जिन्हां दे मत्थे उत्ते तुरों लिखिया चंगा भाग उगड़ पिया, उन्होंने गुरु पासों परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया। फिर सानू ये समझ आ गई कि जिस वेले असी गुरु दे दस्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, साडी अवस्था किस तरह बन जाती है। जे गुरु का ज्ञान नहीं सानू प्राप्त, अज्ञानी हाँ असी, तो फिर असी मनमुखी हाँ। जे मनमुखी हाँ तो असी अज्ञानी हैं। तो अज्ञानियों का काम की होंदा है कि गुरु नालों अपने परिवार नाल ज्यादा मोह रखना।
ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਵੀ ਉਪਜੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਪਜੇਗਾ, ਲੋਭ ਵੀ ਉਪਜੇਗਾ, ਮੋਹ ਵੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹੰਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, और तू मेरा ब्रदर भी है, होली ब्रदर भी है। तो सारा खालसा पंथ, सारा सिख समाज जो इक्को ही है। साढ़े सारिਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, शहीद करवा दिते। और क्या इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत जीवत कई हजार। तो उन्होंने जेड़े नादी पुत्र सन उन्हों तो अपने बिंदी पुत्र कुर्बान कर दिते। तो उन्होंने मन में ये हो गया कि सारे भाई ने, तो जड़ा बंदा गुरु तो ज्ञान प्राप्त करता है वो भी परमात्मा नूं इक्को पिता, साडा सारियां दा परमात्मा पिता कौन है? परमात्मा है। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂਘ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, हे ਮਿੱਤਰ मैनू परमात्मा दा दर्शन करा दे, मेरी जिंद तेथों मुड़ मुड़ सदके जाया करेगी। सुन मीता धूड़ी को बल जाई, हे मित्र मेरी बेनती सुन, मैं तेरे चरना दी धूड़ तो कुर्बान जाता हाँ। फिर उहदी दृष्टि विच की हुंदा है कि सभे सांझी वाल सदायन, कि सारे ही उन्होंने सांझी वाल सजाते हैं कि सारे सांझे हाँ, असी सारी जिहड़ी है यूनीवर्स जिहड़ी है वो इक्को ही परमात्मा की पैदा की हुई है। भावें उस एक स्टेटमेंट है जिहड़ा सिख पंथ इस स्टेटमेंट नूं मनदा है और प्रैक्टिकल भी मनदा है कि भावें मुसलमान हैं, भावें वो क्रिश्चियन हैं, भावें वो हिंदू हैं, ते भावें वो जूज हैं, किसी भी कौम के बंदे हैं, वो सारे ही जिन्हों असी वाहिगुरू कहने या असी परमात्मा कहने उस परमात्मा के पैदा किए हुए हैं। उन्होंने परमात्मा कोई अलग नहीं है, क्रिश्चियन का परमात्मा अलग नहीं है, बोधियां का परमात्मा बोधी ते चलो उन्होंने ते अलग ही सोच ही अलग है, वो तो रब नूं मनदे ही नहीं, वो तो नेचर नूं सिर्फ गॉड मनदे ने। खैर साडे वास्ते जिहड़े बुद्ध धर्म नूं मनण वाले भी हैं, जैन धर्म नूं मनण वाले भी हैं, किसी भी धर्म नूं मनण वाले हैं, अगर वो जी जंत मनुख मात्र सारे हैं, वो सारे ही उस परमात्मा के पैदा किए हुए हैं। सिख दी जो ज्ञान उसनूं प्राप्त होया गुरु तो, ओदी दृष्टि भी जिहड़ी है वो बड़ी जिहड़ी विस्तृत हो गई है, ब्रॉड हो गई है। ते ओनू सारे हुण की दिसदे हन, सभे सांझी वाल सदायन तू किसे ना दिसे बाहर आ जियो। दुनिया दे सारे जी जंत तेरे नाल ही सांझ रखण वाले अखवाउंदे हन जियो। कोई जीव ऐसा नहीं दिसदा जो तैतों वखरा होवे जिस विच तू ना होवे। कोई ऐसा मनुख है ही नहीं, कोई ऐसी संसार दे विच चीज है ही नहीं। कुदरत दिसे, कुदरत सुनी है, कुदरत दे विच तू दसना है, कुदरत दे राही तू सुनना है, ते कुदरत राही तेरे दर्शन हुंदे हन। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। सारी गुरबाणी दे अंदर नानक बोले गुण बाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। ये जिन्नी बाणी है ये गुण बाणी है। जे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो गुरु के ज्ञान राही प्राप्त करना है, गुरबाणी राही असी प्राप्त करना है। तो गुरबाणी नानक बोला गुण बाणी गुरबाणी हर नाम समाया। तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, हे दातार तू आप ही जीवां नूं ज्ञान बख्श करके गुरु की शरण पा के माया के बंधना तो आजाद करा देना है। ये एक इत्थे बड़ी वड्डी एक स्टेटमेंट है कि जिसनों गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके माया के बंधन कटे जाते हैं। एक सवाल प्राप्त होता है कि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए।
ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। हौमे दा रोग इस तरह दूर होएगा कि जे असी गुरु दे शब्द दी कमाई करांगे, भाव गुरु दे दसे ज्ञान दी वरतों करांगे, तो फिर ये हौमे वर्गा जो क्रॉनिक डिजीज है ये भी जड़ी है वो दूर हो जाएगी। तू आपे मनमुख जन्म पवाई है, तू आप ही जीवन नूं मन दा गुलाम बना के जन्म मरण दे गेड़ विच पवांदा है। इत्थे हुण देखिए कि साडा व्यू पॉइंट की है। साडा है कि जिवें असीं क्या मानस की जात सब एक है पहचान वो, कि कोई किसे रंग दा है, कोई किसे नस्ल दा है, कोई किसे लैंग्वेज नूं बोलदा है, कोई किसे संसार दे किसे इलाके दे विच पैदा होया है, गर्मी च है सर्दी च है, वो किसी तरीके दा भी किसी भी मजहब नूं मनण वाला है, कोई भी उसका पूजा का तरीका है, लेकिन जिसनों गुरु का ज्ञान हासिल हो गया है वो गुरु के ज्ञान नूं हासिल करके उसकी दृष्टि की हो जाती है। अकाल उस्तत विच जो है सानू ये बख्शिश मिलती है कि कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी कोऊ जोगी भयो, कोऊ ब्रह्मचारी कोऊ जति अनुमान गो। कोई रामानंदी बैरागी बनया होया है, कोई सन्यासी अते कोई जोगी बन गया है, कोई ब्रह्मचारी अते कोई जति दिसदा है। हिंदू तुर्क को राव जी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक है पहचान। कोई हिंदू है, कोई तुर्क, कोई शिया रावजी है, अते कोई शिया दा रावजी दा भाव शिया दा भाव रावजी है, अते कोई सुन्नी इमाम साफी ਜਿਹੜੇ सुन्नत करांदे हन। सारे मनुखों की पैदाइश अथवा जात हन, कोई भी किसी होर दा पैदा किया होया नहीं है। इसलिए इन्हां सारियां नूं इक्को ही जिहा समझना चाहिए है। करता करीम सोई, सब दा करता, असीं मूल मंत्र विच पढ़दे हां करता पुरख, ते ओ करता पुरख जिहड़ा है वो सारियां विच समाया भी होया है। इज ऑल प्रिवेडी, ओमनी प्रेजेंट है सब जगह के ऊपर। हर एक जीव जंत के अंदर जिन्नी भी नेचर है वो सारिया दे विच वो परमात्मा आप दिसदा है। करता करीम सोई, सब दा करता वही, करीम भाव कृपालु है, अते रोजी देन वाला दयालु भी है। राजक रहीम ओई, दूसरों ना भेद कोई, भूल भ्रम मानवो। ये होर कोई अंतर समझन ते भरम विच नहीं पैना चाहिए कि मानस की जात सब है एको पहचान वो है, इस दे ऊपर पहरा देना चाहिए है। एक ही की सेव सभी को गुरदेव एक। मैं जिहड़े भी ऊपर कैटेगरीज गिनाइयां हैं वो सारियां ही एक गुरदेव दियां पैदा कीतियां होईयां हन। इक्को दी ही सेवा करो क्योंकि सब दा गुरु इक्को ही है। सारे इक्को दा स्वरूप हन, सारियां विच इक्को जोत सानू समझनी चाहिए है। तो आओ इन्हां चीज़ां तो बाहर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਇਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਇਨਬੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ is not obtained easily, कि किसी होर चीज वांगू ये आसानी नाल नहीं मिलता जिहड़ा तत् ज्ञान है। इट मस्ट बी वर्कड फॉर, इस उत्ते काम करना पेगा, थॉट फॉर, उहदे उपर सानू ध्यान लगाना पेगा, सोच अपनी नू बदलना पेगा, एंड मोर देन दैट एंड मोर देन ऑल, ये सारे तो अगों की सानू करना पेगा, मस्ट बी प्रेड फॉर। ये आनू इस वास्ते प्रार्थना करनी पेगी, अरदास करनी पेगी, ते तां ही साडे जिहड़ी है ये सानू रियल नॉलेज जिहड़ी है वो प्राप्त होएगी। ते एक होर डॉक्टर भाई जोत सिंह जी साडे बड़े विद्वान होए हन, उन्होंने कहा है कि ये ज्ञान की प्राप्ति वाल पहला कदम हो सकता है जदों असीं अरदास करते हैं, सतगुरु अगे बेनती करते हैं
कि सानू अपना नाम दे, विसर नहीं दातार अपना नाम दे। नाम मंगना भी ज्ञान मंगना ही है। नाम और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। तो ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਕਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ I know that I know nothing। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ I am like a boy। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ who is playing on the bank of sea, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ with stones। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। while the ocean of knowledge lies in front of him untouched। ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद, केतियां खानी केतियां बाणी केते पात रिंद, केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। भाव ये जो भी उसकी रचना है उसका असी अंत नहीं पा सकते। तेरे दाने कीमत ना पवे, सारियां उहदियां दातां ने। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। इन्हां चीज़ों तो सानू देख करके सहजे ही अंदाजा लगाना चाहिए है कि जे उस दियां दातां नू असी नहीं गिन सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तो जिसने दातां बनाईयां हन, जिहड़ा उहदा क्रिएटर है, उसकी सानू कित्थों प्राप्त होएगी। ते मनुख इस सारी कायनात दे समझ विच अपने आप नू तुच्छ होना दा अनुभव करता है कि जिसनों यह ज्ञान प्राप्त होता है तो वह फिर अपने आप नू एक बहुत तुच्छ जिहा महसूस करता है कि मैं एक तुच्छ जिहा प्राणी हाँ, मैं इस परमात्मा दे अंत वाले पासे ना पावां। अंत ना सिफती कहन नान, अंत ना करने दे नान दे ना अंत। अंत ना सुरती, ना सुरतां दा पता है ते ना उन्होंने ज्ञान दा पता है। अंत कारण कहते बिलाए अखीर ते कहते ने महाराज ताकि अंत ना पाए जाए। किन्ने भी उसनू अंत कासे लभन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह परमात्मा का जिहड़ा है वो अंत नहीं लिया जा सकता। एक विद्वान है जो स्टर्लिंग, उन्हें क्या है द वर्स्ट एजुकेशन दैट टीचेस सेल्फ डिनायल। ये थोड़ा डीप है, गंभीर है। द वर्स्ट एजुकेशन दैट टीचेस सेल्फ डिनायल, आपा त्याग, is better than best education that teaches everything else and not that। कहता जिन्ना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन जे वो आपा त्याग वाले पासे नहीं ले जाते तुहानू एक परमात्मा दे नाल नहीं जोड़दा, ते समझ लो कि उसदे कोल आपा त्याग वाली सरेंडर वाली जिहड़ी है उसनू ज्ञान जिहड़े है वो प्राप्त नहीं हुई है। ते अज्ञानता दे हनेरे नू खत्म करना ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है। सच दे प्रकाश नाल भरपूर करना है अपने मन नू। कूड़ दी कंध ढह जाती है। जिहड़ा वड्डा सवाल गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहब विच कीता
कि किम सचियारा हुई है, किम कूड़े टुटे पाल, कि किमें झूठ की दीवार जिहड़ी है टुट सकती है। तो उसका उपराला ही साडे जीवन का मनोरथ है, उसका उपराला ही जपजी साहब का सेंट्रल आइडिया है, और वही उपराला जिहड़ा है वो क्वेश्चन जिहड़ा है श्री गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा है वो मेन क्वेश्चन है, और वही साडे सारिਆਂ वास्ते एक टारगेट है और एक चैलेंज है कि असी किवें उस परमात्मा दे नाल जिहड़ा है वो कूड़ दी दीवार जिहड़ी कूड़ दी दीवार नूं समझ लो माया दी दीवार है। भांबेरी के पीत पार दो बिन पेखे दुराया, जिवें भंबीरी दा तितली दा खंभ कितना पतला होंदा है, लेकिन यू कैन नॉट सी थ्रू दैट, परले पासे तुसीं देख नहीं सकते। तो इस करके वो जिहड़ी व्हील ऑफ फालसुड है उसनूं असीं किवें तोड़ना है, उसनूं तोड़न दा साधन ही यथार्थ ज्ञान है। एक जगह ते हनेरा है वीर जी, ते उस हनेरे नूं दूर करन दा की तरीका है, भावें हनेरे नूं लठ मार लो, भावें उत्ते किरपाना चला लो, भावें बंदूकां चला लो, हनेरा दूर नहीं होना। हनेरा किवें होएगा, बाणी सानूं समझांदी है कि दीवा बले अंधेरा जाए। दीवा तां ही जदों जल जाएगा, ज्ञान रूपी दीरा जदों दीवा जलेगा ते हनेरा जिहड़ा है अज्ञान रूपी हनेरा अपने आप दूर हो जाएगा। तो मनुखी जीवन दे जो सारे पक्ष हैं उन्हां नूं इह ज्ञान प्रभावित करता है, भावें वो अध्यात्मक होण, भावें सभ्याचारक होण, भावें विज्ञानक होण, आर्थिक आदि विच सुमेल स्थापित करता है। तो इन्हां आपस दे विच एक कोआर्डिनेशन भी करता है, आपस विच एक अंडरस्टैंडिंग भी करता है, ते उहदे समर्थ सानू बना दिंदा है कि असी इन्हां दे विच तालमेल किवें रख सकते हैं कि जिहड़े बंदे बहुते साइंटिफिक हो जाण वो इह ना हुण अथीस्ट बन जाण और रब दी होंद नूं ही जिहड़े चैलेंज करन लग पैण। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिहदे कोल ज़्यादा आर्थिक जिहड़ी है उस नूं नॉलेज आ जावे ते उस जिहड़ी है सांझीवालता दा उपदेश है वंड के छकण तो पिछे हट जाए। ते सभ्याचारक जिवें असीं हुणे गल कर रहे हैं कि दूजे किसी नूं अपने बराबर ही ना समझना ते उहदे नाल नफरत करनी, जिवें कि शूदर जाति कहे जाते, शूदर जाति जिहड़े हन उन्हां नूं मंदिरां दे अंदर या होर धार्मिक स्थानां दे विच जाण नहीं देना, औरतां नूं मस्जिद दे अंदर जाण दी मनाही। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हन इहदा भाव है उन्हां कोल एक पक्षी ज्ञान है, वन साइडेड नॉलेज है, ते जिहड़ी हाफ नॉलेज हुंदी है ना इट इज़ डेंजरस। तो इस करके कंप्लीट नॉलेज जिहड़ी है वो गुरु तो ही प्राप्त हो सकती है। इस तरह करके मनुख जीवन नूं आनंद दे खेड़े सहित जिउंदा है कि जिस दे अंदर इन्नी ब्रॉड माइंडनेस आ जाती है वो सारे उन्होंने फिर किसी का डर नहीं रहिंदा, सारे भरा है, सानू असीं भरा है, सानू काहदा डर है किसी कोलों। तो वो आपस में बड़े गिलवकड़ी पाते हैं जो मिलते हैं, हस के मिलते हैं। हालांकि परिवार दे विच कई बारी मन मुटाव होंदे हैं, मैं तो समझदा हाँ कि यह भी जिहड़ी फैमिली लाइफ है, जिहड़ी सोशल लाइफ है, इसनूं भी गुरु का ज्ञान प्रभावित करता है। जो असीं समझते हाँ कि यह जिहड़ा मेरा भरा है इनू भी उन्हें राइट्स हैं, उन्हें प्रिविलेज हैं, वो भी सोच रखता है अपनी, ही कैन डिफर विद यू। तो जे डिफर कर रहा है तो सानू उहदे नाल ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उन्होंने स्पेस दिओ, उन्होंने असीं स्पेस तां देंगे जे असीं गुरु दे कोलों ये असीं ज्ञान प्राप्त करांगे कि सभे सांझी वायल सदायन तो किसी ना दिसे बाहर जियो। तो आनंद खेड़े की इस अवस्था दे विच वो मनुख जिउंदा है और प्रोग्रेस करता है। नानक भगतां सदा विकास सुने दुख पाप का नाश। तो वो परमात्मा की जिहड़ी गल सुनदा है वो सुनन दे नाल उसदे मन दे विच एक भगती भावना जिहड़ी है वो पैदा हो जाती है। हुण असीं देखदे भी ज्ञान की लोड़ क्यों है, ये दैवी ज्ञान की लोड़ क्यों है। तो विज्ञानक ज्ञान नाल मनुख दे अद्भुत प्राप्तियां जिहड़ियां हन वो आकर्षण जिहड़ा है उस पासे वल हुंदा है। जीवन नूं बेहद सुखाला बनाया जा सकता है, जीवन बीमारियां ते काबू पाया जा सकता है, कुदरती आफतां तो वसीकर प्राप्त कर लिया है मनुख ने ज्ञान साइंस की नॉलेज दे नाल, धरती दे फिजिकल सीक्रेट्स नूं समझ लिया है ते स्पेस विच पहुंच गया है, जिहड़े उहदे ग्रह ने उत्थे पहुंच गया है, सर्च फॉर लाइफ इन अदर प्लैनेट्स इन स्पेस। These achievements are laudable, appreciable, पर
ਇਹ ਉਸ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖਾਵਤ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। तो यह है कि जे कोई देश ताकतवर हो गया तो उन्हें की किया, उन्हें दूसरे जिहड़ा कमजोर देश है उन्होंने ओवरपावर कर लिया, उत्थे जाके बंबारी कर दी, उन्होंने अपने डोमिनेंस विच लियाने की कोशिश कर दी। तो इस तरीके नाल उसने ताकत हासिल कर ली, साइंटिफिक नाल साइंस एडवांसमेंट नाल कर ली, मेजॉरिटी नाल कर ली, लेकिन मिलिटरी पावर नाल कर ली। लेकिन उसने एक कंसेप्ट भूल गया कि मानस की जात सब है, एक पहचान वो जिन्हों तू डोमिनेशन कर रहा है, जिदा तू कतलेआम कर रहा है। जिवें हिटलर ने कतलेआम किया, किन्ने हजार जिहड़े हन लखां बंदियां नूं उसने गैस के चैंबर दे विच मार दिता। तो ये मनुख ऐसे हैं जिन्हां दे कोल पावर है, वो कहंदे ने पावर मेक्स ए पर्सन करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए पर्सन एब्सोल्यूटली। तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट बंदे हैं जिन्हां दे अंदर यथार्थ ज्ञान की बहुत कमी है। उन्होंने रही है कि मैं ही मैं है, हम ही हम है, तो क्या कम है, तो असी आप ही हैं, सब कुछ साढ़े सामने होर कोई नहीं है। तो इन्हां चीज़ां दे नाल असी अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चे ज्ञान वाले पासे असी चलीए। तो इन्हां सारियां अचीवमेंट के बावजूद आप इन्हां दुनिया के अंदर साइंटिफिक एडवांसमेंट हैं, मैं यथार्थ ज्ञान नूं और जिहड़ा साडे कोल दुनियावी ज्ञान है उसनूं थोड़ा जिहा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया दे विच इन्नी अचीवमेंट्स जिहड़े असीं उपर दूसरे ग्रह च पहुंच गए हैं, असीं सब कुछ कर लिया है, लेकिन भुखमरी, बीमारियां, प्रदूषण, आर्थिक लुट खसुट, हैंकड़बाजी, देशां दी दूसरे छोटे देशों के उपर गरीब मुल्कों उत्ते जिहड़ा है वो अपनी दादागिरी चलाउणी, इलिटरेसी जिहड़ी है वो हाली भी काम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कायम है, हाली हिंसा बहुत है। एक मतलब पूरे दे पूरे असी बंब सुट के बंदियां दा नाश कर देने। अफगानिस्तान च असी देख रहे हैं की हो रहा, एक देश जाता है, रशिया जाता है ते अमेरिका आ जाता है, अमेरिका जाता है ते रशिया आ जाता है। तो उत्थे वियतनाम विच भी यही सीगा, किन्ने साल 10-11 साल उत्थे लड़ाई चलती रही, आखिर उन्होंने विड्रा करना पिया। लेकिन उत्थे दा नुकसान किन्ना कीता, काबुल दा नुकसान किन्ना होया, ये साडे दिमाग विच नहीं आंदा हैगा। ते सानू इसनूं समझण दी लोड़ है कि ये बाहर दा ज्ञान सानू जिन्ना मर्जी प्राप्त हो जाए, लेकिन साडे अंदर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेनोसाइड, जिहड़े डेंजरस न्यूक्लियर वैपन बनाए ने सी, दे आर थ्रेटनिंग ह्यूमन लाइफ, कि ऐसे ऐसे बंब हैं, न्यूक्लियर बंब हैं कि वो दे कैन वाइप ऑफ द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस फ्रॉम द अर्थ। इन्हें डेंजरस हैं। Not only poor but highly educated people are committing suicide, कि सिर्फ गरीब किसान ही नहीं जिहड़े सुसाइड करते लोन करके, हाईली एजुकेटेड बंदे, बड़े बड़े वड्डियां वड्डियां कंपनियां दे CEO, बड़े बड़े वड्डे मालक जिहड़े ने, आखिर क्योंकि उन्हां कोल परमात्मा दा ज्ञान, बैलेंसिंग जिहड़ी आ उन्हां कोल पावर नहीं है, इस करके वो जिहड़े हन वो सुसाइड कमिट करते हैं। ये जो हीरे जैसा जिहड़ा जन्म है कौडी बदले जाए, उसनूं कौडियां दे पिछे पैसों की खातर या किसी होर चीज़ों की खातर डिप्रैशन विच आ करके, क्योंकि वो चढ़दी कला विच नहीं है। नानक भगता सदा विकास, वो एवर प्रोग्रेसिंग उन्हां दी चढ़दी कला उन्हां कोल नहीं हैगी, इस करके वो जिहड़े हन सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है मनुख की सोच। मनुख की सोच मन के पिछे लगी हुई है। इस करके जो ज्ञानवान विद्वान होण अते पदार्थ उन्नति दे बावजूद इस जो चीज़ां हन वो मनुख की सोच जिहड़ी है वो बदली नहीं है। उहदे अंदरों काम क्रोध ये जो एडवांसमेंट मैं गिनियां ने पिछे जे, उन्हां सारियां दे बावजूद साडे अंदरों कहंदे ने तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे दान ना दीना, काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा। सारी सेवा व्यर्थ हो गई।
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ, ਕਰਪਟ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, 9-10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਸ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।